Good morning students, welcome back to our online sessions of class 10 science. I hope all you are fine at your homes with your families. In this pandemic situations, I requested to you, without unnecessary work, don't go outside your homes. Okay, if any necessary, then go outside the home with using the protective face mask. So stay home and stay safe. Using that homes, using a digital medium of learning, you just keep revising yourself in the based of the studies. You used our YouTube channels, which is provided by the schools by the providing the links. Now we are discussing about the acid, base and salt. In the previous 2 or 3 parts, we are discussing about what is called acid, what is called base, what is called neutralization process, what are their general characteristics, what are their physical formulas, what are their chemical formulas, that we generally discussing in the previous classes. Also, we have discussing about the pH. pH is a part of the power of hydrogen, proteins of the hydrogen, that we discussing. Now, any solutions which have generally releasing the H plus ions, which always be a part of the acidic, and the substances which generally release the OH minus, it is a part of the basic. Okay. So, aqueous solution, if it release the H plus or H3O plus, it is a part of the hydronium ion. It always be in an acidic solution. And if it will be released the OH minus, it is a hydroxyl ion, it always be a basic solution. So that is depend on to the how basic are strong, how the acid are strong, how the bases are weak, how the acids are weak, that is depend on to their values of how much concentration of H plus or OH minus ion which is available into that particular solution. Maybe HCl, H2SO4, HNO3 are generally a strong acid which having a concentration is very high. Well, CH3 carboxylic acid ho, acetic acid ho, oxalic acid ho, citric acid ho, these are the acids are very less concentration into the solution. So they are the weak acid. Weak acid generally we use them in a daily life as a part of food like pickles, buttermilk, curd, etc., lemon, tomatoes. They are generally providing the mediums of strong but weak acid because it have a less concentration of H plus ion. While similarly, NaOH, KOH are the strong basic substances which generally release the higher amount of concentration of OH minus, while like baking soda, washing soda is generally called as a weak base because it generally doesn't release so much OH minus ion comparison to the NaOH and KOH. Now also we are discussing about that it can be represented of pH and POH, that is always be a sum of pH and POH will gives you 14, power of hydrogen plus power of hydroxide, pH plus POH, always we give answer is equal to 14 because when you see that 0 to 17, that is generally pH value, if the any solution having a pH value is between 0 to 7, always we consider as an acidic solution, while the solution having a 7 to 14 which is generally called as a basic solution, while the 7 is considered as a neutral substances. So P of H plus POH always give the answer is 14. So that depend on to the how strong and how base, which is depend on to the concentration of H plus ion and OH minus ion into the particular solution, then we can be bifurcate as a strong acid and strong base. Generally we are also discussing about the neutralization process in which when the salt is acidic or when the salt is basic, always we have to remember that in a neutralization process, if acid and base react to each other, always we form salt and water. It may be a strong acid, maybe a strong base, maybe a strong acid, weak base, weak acid, strong base, etc. Whatever the pronunciations is a part of the strong weak, but if you implemented that acid and base as a part of the chemical reaction, always be formed you salt and water. So this type of reaction is called as a neutralization reaction, is a part of the salt, which is a part of the neutral solution. Now the today's topic we have to discussing about that importance of pH value in our everyday life. Now pH value generally we also were discussing in the previous math topic like how the indicators are useful to find out the pH value, like universal indicator, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि किसी भी एसिडिक या बेसिक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इफ़ यू ऐड 2 or 3 drops of that indicators which generally change the color, if it according to the base of color there is a script which is written like what is the pH value of that particular color, so you can be easily determine the pH of the particular aqueous solution by using the universal indicator, but it doesn't give the exact pH value. Exact pH value अगर हमें जानना है तो we have to use pH meter. We have to use the pH meter. pH meter में वो एनोड और कैथोड के फॉर्मेशन होते हैं, उसको जैसे डिप करोगे सॉल्यूशन में, इट जनरली गिव द एक्यूरेट pH वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है, लाइक pH मीटर.
नाउ सो इतने सारे यूजेस है पीएच के, इतने सारे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस है H+ और OH- आयन का। तो हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर व्हाट आर द जनरल एडवांटेजेस और व्हाट आर द जनरल यूजेस ऑफ पीएच वैल्यू इन अवर एवरीडे लाइफ? नाउ एवरीडे लाइफ के अंदर वी जनरली कम्युनिकेट ऑफ द डिफरेंट ऑफ द सब्सटेंसेज विच जनरली हैविंग डिपेंडेंट ऑन टू द वैल्यू ऑफ पीएच, जिसमें अलग अलग 5 वैल्यूज दिया है कि पीएच जनरली हेल्पफुल, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे यूजफुल है। दूसरा पीएच वैल्यू, हाउ दैट शुड यूजफुल इनटू द सॉइल, हाउ द पीएच वैल्यू इज यूज्ड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, या उसके अलावा जो डिकेइंग ऑफ स्टॉपिंग, जो टीथ के अंदर डिकेइंग है उसको रोकने में कैसे हेल्प करता है, या फिर जैसे हनी बी या एंट, जो रेड एंट हमें बाइट करती है तो उसमें कैसे पीएच वैल्यू इंप्लीमेंटेड होता है। सो हाउ दिस टाइप ऑफ पीएच वैल्यू आर जनरली रिस्पॉन्सिबल इन अवर एवरीडे लाइफ। उसमें पहला टॉपिक समझते हैं हाउ द पीएच इज यूजफुल फॉर द लिविंग बीइंग एग्जिस्टिंग। सबसे पहले तो हमारे बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि ऑल दी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशंस है, स्वेट रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, ऑल दिस टाइप ऑफ द साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विच इज़ डन इनसाइड योर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर सारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो होती है, बट द साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विच इज़ डन इनसाइड आवर बॉडी विच जनरली हैविंग द पीएच वैल्यू 7.0 to 7.8। इसके बीच में अगर हमारे बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 के बीच में है तो दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डन इनसाइड योर बॉडी। लेकिन if the pH value that can be increase or decrease, it may be generally make a disturbance into this type of the activities. Okay, तो जैसे हम देखते हैं कि प्योर वाटर है, वाटर के pH वैल्यू 7 है, प्योर वाटर दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, दैट इज वैल्यू pH वैल्यू 7 है। इफ pH वैल्यू अगर 7 से लेस देन होती है वाटर की तो वो एसिडिक में कंसिडर होता है, और 7 से ज़्यादा होती है तो अल्कलाइन में कंसिडर होता है। लाइक रेन वाटर की pH वैल्यू 5.7 के अप्रोक्सीमेट है, इसीलिए उसको एसिडिक रेन भी हम कह सकते हैं। So the survival of this type of living organism have been difficult if there should be a change in the biological reaction that get be disturbed. If any biological reaction, it may be change its pH value, so it can be disturbance for the living organism. उनके living organisms के अंदर इस तरह का disturbance create होता है if there is any certain changes in the pH value. तो जनरली हमारी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है 7.0 से 7.8 के बीच में ही हो रही है, बट इफ देर इज एनी चेंजेस इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ दिस पीएच वैल्यू दैट मे बी डिस्टर्बिंग टू योर बॉडी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जनरली अभी हमने डिस्कशन किया कि जो पीएच वैल्यू है, द पीएच वैल्यू लाइक पीएच वैल्यू ऑफ वाटर की पीएच वैल्यू जो 7.0 का है, जबकि रेन वाटर का 5.6 का है। यानी रेन वाटर जो हो गया वो क्या होगा आपका 5.6 से यानी कि 7 से कम हो गया, इट शुड बी एसिडिक रेन। अभी ये जो एसिडिक रेन है, जैसे ये एक्चुअली दैट वाटर एज अ फॉर्म ऑफ रेन विच एट द एंड ऑफ द टाइम दैट एंटर इनटू द वाटर रिजर्वर्स, जिसमें लैक्स है, डैम्स है, उसके अलावा रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ऐसे अलग अलग तरीके के जो वाटर रिजर्वर्स होते हैं वहाँ पे एसिडिक रेन जो है वो इम्प्लीमेंटेड करता है रेन वाटर। सो दिस टाइप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ एसिडिक वैल्यू व्हेन एंटर इनटू दैट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज है वहाँ पे रेन वाटर अगर इम्प्लीमेंटेड होता है देन व्हाट, सो ऑन दैट टाइम तो पीएच वैल्यू जो रेन की जो फ्रेश वाटर की होगी दैट कैन बी स्टार्टेड टू बी डिक्रीजेस, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया एसिडिक मीडियम एंटर हो गया। तो व्हेन एसिडिक रेन वाटर व्हेन एंटर इनटू दैट फ्रेश मीडियम ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वाटर इट जनरली रिड्यूस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो वो जो फ्रेश वाटर की पीएच वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर में क्या एंटर हो रहा है एसिडिक मीडियम एंटर हो रहा है। तो जैसे वहाँ की पीएच वैल्यू स्टार्टेड टू बी डिक्रीजेज, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक्स रीजन के अंदर रह रहे हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस देखने को मिलता है, दैट मे बी देखिंग चेंजेस इनटू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन बी हार्मफुल एंड कैन नॉट बी बेयर बाय दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उनका जो लाइफ होता है दैट बिकम एक्सेसिंग ऑफ द डेंजरस इफ इट शुड बी दिस टाइप ऑफ द हैपन्स और डन। सो पीएच वैल्यू, so that's why the pH value is so much importance into the existing of the living beings. Okay, इसीलिए pH value जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। That is the first topic. Second, how the pH is useful into the soil. Generally हमें एक चीज़ पता है कि in our country mostly the peoples are engaged into the cultivation of crops. Agriculture perspective में consider है। So if the agriculture perspectives, they generally have to implementation of more and more crops. Their basic idea is okay, they generally
develop more and more crops, produce more and more crops that can be easily useful by the each and every living organism who are available onto that particular ecosystem. So on that, crops is generally cultivated on the soil. So pH value is also responsible for the good crop production as well as the healthy nutrition of the crops. So soil fertility is responsible. So before the soil fertility, quality of soil is so much necessary to checking out if it should be a good soil or not, or maybe whatever the crops we are cultivated in that soil, it should be produce a more and more crops as a part of the nutrition. So generally plants require a specific pH value for their healthy growth. Plant having a specific pH value which require from the specific healthy growth. और इस प्लांट वैल्यू के अंदर हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू जो प्लांट की होती है सॉइल की 6.5 से 7.3. इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल इट अप्रोक्सीमेट बिटवीन 6.5 to 7.3, सो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज अ गुड सॉइल. अगर सॉइल की पीएच वैल्यू 6.5 से 7.3 के बीच में होती है, then this type of soil is called as a good quality of soil, which is generally helpful for producing the good health and crop productions, जिसमें वो shrubs जो होते हैं easily developed होते हैं, crops जो easily produce होता है. But if there is a less than 6.5 pH value, अगर वो 6.5 से अगर कम है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो सॉल्व होता है उसको एसिडिक सॉइल कहते हैं. ओके, इफ़ this type of 6.5 less than pH value, so this type of soil is called as the acidic soil. So उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो फार्मर्स दे हैव टू बी इम्प्लीमेंट कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम. सो द लाइम कैल्शियम ऑक्साइड दैट कैन बी एडेड इनटू द एसिडिक सॉइल, सो इट कैन बी न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होगा तो वो प्रॉपरली बैलेंस कर सकता है क्रॉप को इम्प्लीमेंट करने में. बट अगर 7.3 से ज़्यादा है, इफ़ द pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7.3, तो ऐसे सॉइल को आप क्या कहोगे, अल्कलाइन सॉइल कहते हो. इस टाइप के सॉइल को हम अल्कलाइन सॉइल कहते हैं. और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव टू बी एडेड इनटू द जिप्सम, जिसको आप क्या कह सकते हो, केमिकल फार्मूला CaSO4 × 2H2O, ये ऐड करना पड़ेगा ताकि आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो. एक बार सॉइल अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसके अंदर से गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो दो हो गए, पहला पीएच लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे यूजफुल है, दूसरा पीएच सॉइल के लिए कैसे यूजफुल है, तीसरा हाउ दिस पीएच वैल्यू यूज फॉर डाइजेशन सिस्टम. अभी देखिए डाइजेशन सिस्टम, ऑलरेडी हमने पहले भी बायोलॉजी का जब चैप्टर डिस्कशन किया था तब मैंने उसमें आपको समझाया था कि व्हाट इज़ कॉल्ड डाइजेशन सिस्टम, जिसमें अलग अलग तरीके के जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो यूज़ होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स है, एसोसिएटिव ग्लैंड्स है, ये सारे इंप्लीमेंट होकर एक स्पेसिफिक सिस्टम फिल करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. सो वी नो दैट कि डाइजेशन ऑफ फूड दैट कैन बी डन इन टू योर स्टमक. When the food that is enter into the mouth of the esophagus, which is at the end of the time enter into the stomach. Stomach के अंदर ये enter होता है, and stomachs generally release the hydrochloric acid HCl. The hydrochloric acid which is released by the stomach. अभी वो HCl क्यों रिलीज करता है? HCl रिलीज करने से क्या होता है कि फूड का डाइजेशन काफ़ी इजीली होता है विदाउट हार्मिंग एनी काइंड ऑफ द स्टमक्स. ये HCl तो क्या एक तरीके से एसिड है. HCl इज़ वॉट, इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो अगर हमारा स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ हो रहा है तो वो तो हमारे ऑर्गन को हार्मफुल होना चाहिए, बट नो, व्हेन द फूड एंटर इनटू द स्टमक इट रिलीज द HCl फॉर द डाइजेशन पर्पस विच डज नॉट हार्म द which does not harm your stomach. But whatever the insects and some of the other microorganisms which is not useful for our body, which enter through the food in your body, that can be killed by the HCl. HCl क्या करेगा, उस जर्म्स या जो बैक्टीरिया जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसको वो किल कर देता है वहीं पे. तो उसके लिए क्या होता है फिर समटाइम्स यू सी दैट कि व्हेन यू यूज सम ऑफ द मोर कंटेनिंग ऑफ प्रोटीन एंड फैट सब्सटेंसेज लाइक नॉन वेजिटेरियन, जैसे होता है ना कि इफ़ यू टेकिंग द नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंसेज और मोर फूड दैट हैविंग अ मोर फैट एंड ऑयली सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज जब हमारे स्टमक के अंदर जाते हैं तो विच रिक्वायर्ड द मोर HCl फॉर द डाइजेशन. उनको डाइजेशन के लिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा HCl सिक्रेटेड होता है. तो इफ़ मोर एंड मोर HCl सिक्रेटेड इन द स्टमक, तो वह एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक के अंदर क्रिएट होता है. इट जनरली क्रिएट द एसिडिक मीडियम इन योर स्टमक. तो वो जो इफेक्ट होती है उसको हम एसिडिटी कहते हैं. अगर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है
तो उसके वजह से इरिटेशन फील होता है, पेन फील होता है, जलन फील होती है। ऐसी जो सिचुएशन हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होती है उसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो एसिड जो होता है, जैसे अभी इसको हमें बैलेंस करने के लिए अभी वो एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है, तो बेसिक सब्सटेंस दैट जनरली यूज्ड टू रेमिडीट्स ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ एसिडिक मीडियम, तो उसके लिए हमें बेसिक सब्सटेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे जिसको हम एंटीसिड्स कहते हैं। एंटीसिड्स इज अ पार्ट ऑफ द मेडिसिन, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो इट जनरली न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम इनटू योर स्टमक। सो बेसिक सब्सटेंसेस उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एज वेल एज some like the implementation of powder like enos and basic substances of the powder which can be added into the water and which can be used in a form of liquid substances which can be also create the basic medium into the stomach, so it can be neutralize the medium of acidic. So it is also effect into the digestion process. तो pH value अगर digestion में increase होता है तो ये effect start हो जाती है। फोर्थ जो है, how the pH value that can be help to stopping decay of teeth, जो दांत को सड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको कैसे रोकते हैं, that should be how it should be implemented. So हम देखते हैं कि when the pH value of inside of your mouth is less than 5.5 then it should be decaying of teeth starts process will be implemented. Okay, so the mouth having inside of cavity having the pH value is 5.5, that is a good. If 5.5 is there inside of mouth cavity, that is for the good. But if the pH value is implementation of less than 5.5, अगर 5.5 से कम हो जाती है pH value inside of mouth cavity, on that system the teeth that can be start to be decaying, जो हमारे teeth के जो formation होते हैं it should be start to be decaying. So if you seen that कि outer layer of teeth का जो outer layer बना है वो hard calcium phosphate का बना हुआ है, like Ca3PO4 twice calcium phosphate का substances बना है। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी इजीली डिजॉल्व इनटू द वाटर, ना ही उस पर कोई डिकेइंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हमारे माउथ के अंदर अगर हो जाती है तो एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है। तो वैसे समय में जब फूड का डिकम्पोजिशन होता है तो एसिडिक मीडियम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन यू स्टार्ट टू बी डिकम्पोजिशन व्हेन द फूड गेट स्टार्टेड इनटू द पार्ट ऑफ द शुगर, और वो कार्बोहाइड्रेट में जैसे कन्वर्टेड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टीथ दैट इज स्टिली अवेलेबल इनसाइड ऑफ योर टीथ एंड विच शुड बी स्टार्टेड टू बी डिकेइंग. So on the process of leaving of value 5.5 less than it should be start to decaying formation of teeth inside of your mouth. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो एसिडिक मीडियम इंक्रीज कर रहा है. So the basic substances which had to be implemented inside of your mouth, so that can be easily neutralize the inside of cavity of your mouth. जिसमें basic substances में से टूथपेस्ट है, जिसमें आप कोलगेट है, पेप्सोडेंट एटसेट्रा वट एवर द टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, या टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक सब्सटेंसेस के होते हैं. और बेसिक सब्सटेंसेस जैसे आप इम्प्लीमेंटेड करते हैं वो जो माउथ के अंदर का इंसाइड ऑफ कैविटी 5.5 से कम हो रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, जिसके वजह से डिकेइंग ऑफ टीथ की प्रोसेस जो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है. इसीलिए एवरी टाइम कभी भी मिनिमम आप लंच का आपका जो अर्ली मॉर्निंग आप जब उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं, और रात को सोने के बाद जैसे आप अपना डिनर कंप्लीट करते हैं ब्रश करते हैं. दिस आर द गुड हैबिट्स टू प्रोटेक्ट योर टीथ. तो इसीलिए पीएच वैल्यूज़ भी इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टॉपिंग द डिकेज. और लास्ट में है कि व्हाट आर द रेमेडी ऑफ एंट एंड हनी बी. जब उसको बाइट करती है तब जनरली आपने बहुत बार ऐसा फील किया होगा, यू मोस्ट ऑफ यू फील दैट विद द रेड एंट और हनी बी when the bite on the some of the organs in your body, it generally create the irritation and pain. Also you can see that there is a swollen which can be available. How that can be formation? When the red ant that can be bite, we generally create the formic acid inside of body, and honeybee that is creating the malatin. Malatin is one of the harmfulness poisonous substance which is the harm to your body, which generally create the acidic substances. तो फॉर्मिक एसिड या मैलेटिन जैसे सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम को इंक्रीज़ करते हैं, जिसके वजह से पीएच वैल्यू हमारी एसिडिक मीडियम इंक्रीज़ होती है. इसीलिए हमें वहाँ पे बेसिक सब्सटेंसेस है, जैसे वहाँ पे बेसिक्स बेकिंग सोडा या ऐसे कोई सॉल्यूशन उसके आसपास अगर आप लगा देते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. सो दैट कैन बी ऑल्सो हेल्प. सो दिस आर द टॉपिक्स विच इज़ जनरली यूज टू हाउ द पीएच वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरीडे लाइफ, जिसमें हाउ द पीएच वैल्यू इज़ यूजफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, how it can be useful for the soil, how it can be useful for the stomach, digestion of stomach, decaying of teeth, or maybe formations of like remedies of ant and honeybee. So these are the topic we have to discussion into this lecture. Now also discussing about the sodium hydroxide, one of the how the preparation of sodium hydroxide. But before that discussing, one is topic is there one common salt.
Common salt is what? That is called NaCl. Salt when formed, it is a part of the neutralization process. When sodium hydroxide and HCl, when they react with each other, that create the salt and water, NaCl and H2l. NaCl is a part of the common salt. Now, in which first we are discussing about what is the sodium hydroxide, how it can be prepared, and what is the use of sodium hydroxide. Now, sodium hydroxide is generally a part of a basic solution which is called NaOH, sodium hydroxide. How we can be prepared the sodium hydroxide? Simply, when an aqueous solution of sodium chloride, which is called brine, when the aqueous solution of sodium chloride NaCl, which is called brine, is used to be electrolyted, electrolysis process जो होती है वो, so when the sodium chloride is used to be electrolyted, there is a two gas which can be released. One is called chlorine gas is seen onto the anode, while hydrogen gas is seen onto the cathode. When the electrolysis process is there, it can be generally use the two diode, one is called cathode, one is called anode, okay, negative and positive there. So when that I already told you कि H2O का electrolysis process कैसे होता है, हाइड्रोजन कैसे अलग होता है, ऑक्सीजन कैसे अलग होता है, अभी हमने पहले डिस्कशन किया है. सिंपली कि जैसा अगर हम देखते हैं कि when there is a process of electrolyte onto the solution of NaCl, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, उस पर अगर आप इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे एनोड और कैथोड ऐसे दो सब्सटेंसेस होते हैं. एनोड पे अगर आप देखेंगे तो आपका क्लोरीन गैस लिबरेटेड होता है और कैथोड पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेटेड होता है. और ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो फॉर्म होता है, NaOH दैट कैन बी फॉर्म. इसका सिंपल केमिकल रिएक्शन अगर हमें समझना है तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्म होता है NaCl, 2NaCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2H2O लिक्विड. 2NaCl इज एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2H2O लिक्विड. उसका रिएक्शन अगर आप करते हैं तो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं. तो ये जो NaOH मिलता है उसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. इस प्रोसेस को आप क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं. ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऑब्टेन हो रहा है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि प्री आर कॉलर फॉर्मेशंस ऑफ क्लोरीन वो मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो इस प्रोसेस के अंदर, क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर H2, Cl2 और NaOH ऐसे तीन सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं. तो तीन सब्सटेंसेस काफ़ी यूजफुल होते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूजफुल है, हाइड्रोजन भी यूजफुल है, क्लोरीन भी यूजफुल है. तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. अब इसके यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, क्लोरीन का क्या यूज़ है और हाइड्रोजन का क्या यूज़ है. पहले तो हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे बड़ा यूज़ जो होता है वो डीग्रेसिंग ऑफ मेटल. मेटल के डीग्रेसिंग में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है. उसके अलावा शॉप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन आपको करनी है तो शॉप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. पेट्रोलियम सब्सटेंसेस के प्योरीफिकेशन में भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी इंप्लीमेंटेड है. इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी इंप्लीमेंटेशन होता है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है. फिर टेक्सटाइल फाइबर्स में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है. तो दीज आर द जनरली यूज़ ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के और भी दो सब्सटेंसेस मिलते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन है. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे हेल्पफुल होता है. हाइड्रोजन का तो यूज़ आपको पता है कि एज अ पार्ट ऑफ द फ्यूल, रॉकेट के अंदर जो हम देखते हैं कि फ्यूल के लिए वो यूज़फुल होता है. वेजिटेबल ऑयल्स बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता है. एमोनिया गैस की प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो तीन यूज़फुल है हाइड्रोजन के. क्लोरीन का भी सिमिलरली वैसा यूज़फुल है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसका यूज़ होता है एज अ पार्ट ऑफ द सिंथेसाइजेशन ऑफ सैनिटेशन, कि जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें से जर्म्स है इसको. क्लोरीन का अगर यूज़ देखें तो क्लोरीन का यूज़ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसका यूज़ होता है. फिर उसके अलावा हम देखें तो पीवीसी के मैन्युफैक्चरिंग में पॉलीविनाइल क्लोराइड उसमें उसका यूज़ होता है. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके सिंथेसाइजेशन में उसका यूज़ होता है. ब्लीचिंग पाउडर में उसका यूज़ होता है. ऐसे अलग अलग जगहों पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं. तो ये होता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन के यूजेस कैसे बनते हैं. तो आज के लिए केवल इतना ही डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर द यूज ऑफ pH वैल्यू इन अवर एवरीडे लाइफ एंड व्हाट इज कॉल्ड क्लोरो अल्कली प्रोसेस इन विच हाउ वी कैन बी प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, व्हाट आर देयर यूजेस. Okay, so till only this type of topics we discussing only. So revise these topics, इसके नोट्स बनाइए. ज़्यादा अगर डिस्कशन है तो आप उसको डिजिटल स्टडी मीडियम से आप सर्च करके उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे दूसरे प्रोसेस के कैसे उसको बनाते हैं, उसका यूज़ क्या है. टिल स्टूडेंट्स बी इम्प्लीमेंटेशन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स, जस्ट रिवाइज इट, प्रैक्टिस इट एंड मेक अ नोट्स. एंड
implementation of this type of topics. When we meet next time, we're discussing more ahead of this acid, base and salt. Till just I requested you to be safe. So stay home and stay safe, and using a digital medium of learning, keep revising, keep studying. Till take care, bye.